Namo Namah Sarvebhyah. Welcome you all for Sanskrit guidance session presented by Lingvafy. Today we are going to deal with the paper of our 10th standard Sanskrit entire. How we can focus of scoring maximum marks in Sanskrit. And as we know, limit is 100 on 100. So let's understand how to score full marks in Sanskrit. Before showing that, I would like to display you the results which will make confidence in your mind that definitely we can score full marks in Sanskrit. You can see that there is example of Rohan Benoit who scored 100 on 100 in Sanskrit, CBSE. Samira Surve, Mumbai topper, scored 99, and there are many students who scored 99 out of 100. So it is sure that we can definitely score good marks in Sanskrit. For that, something is required. What things are required that we will see over here. Let's go ahead with some that point. First thing, whenever you are writing your answer paper, which are the things will make your answer paper unique? That we have to think. Or how to make your answer paper unique. Because you can see there are many papers are there with corrector. And when so many papers they have to correct, hardly they will get time to check your paper. So in that also, if you have written same way, the way others have written paper, it will not create any different impact in his mind to correct it and to give marks to you. So such thing, you have to make your answer paper somewhere unique. How to make answer paper unique? For that, we will give you guidance. As we also know, when routine life is going on, we are getting bored. Something happening happens in our life, then time we are thinking, yeah, now I have to deal with it properly. We are enjoying, we are getting something extra. For that same thing happen with character also. So we have to be alert that our answer paper should be unique. And one more thing we have to keep in mind, unique doesn't mean कुछ हटके करना है, मतलब कुछ भी कर दिया, दैट स्केच पेन यूज किया या फिर और कुछ मार्कर यूज करके मैंने किया, हाइलाइटर यूज किया. इट इज नॉट लाइक दैट. when you want to make your answer paper unique, it should be through your answers, through your presentation you can do. So two tools we have, one is a handwriting and another is a presentation. By these two things you can make your answer paper unique. Handwriting is God's gift. At the same time we can say some of them have practiced a lot from the beginning and now they can write in better manner. But it is not everyone's cup of tea that they can make handwriting good, but presentation is in our hand. डेफिनेटली ईच एंड एवरीवन कैन डील विद द प्रेजेंटेशन. मतलब अगर हम लोग को कहना है ना, तो वी कैन से लाइक दैट, कपड़ा कौन से ब्रांड का पहना है दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट वो धोके अच्छा इसलिए करके पहना है क्या, इट हैज इम्पोर्टेंस. सो अकॉर्डिंगली हैंड क्या है कैसा है वो इट्स ओके है, बट उसको प्रॉपरली प्रेजेंट किया है कि नहीं, दैट डील्स अलॉट. तो उसको याद रखना है हम लोगों को एंड आगे बढ़ना है. प्रेजेंटेशन में क्या प्रेजेंटेशन रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, यू विल गेट lots of suggestions from many people. Some contradictory suggestions also you will get, but at the end what you will do, you have to do, you have to keep one thing in your mind. Keep yourself in the position of corrector and think what are the necessary changes you can do in your answer paper. Do whatever which makes correction easy and corrector happy. जो करेक्टर को इजी पड़े करेक्शन के लिए वो पहला है, खुश होए वो दूसरा है. तो उस तरीके से आपको आंसर पेपर को प्रेजेंट करना है. 4 इम्पोर्टेंट टूल्स, उसमें पहले दो टूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद के दो ऑप्शनल है. उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने लेवल पे लिखने की कोशिश कर सकते हैं. बट पहले दो जो शस्त्र है वो शस्त्र लाइक, एक है हम लोग बोल सकते हैं वैसा स्वॉर्ड है, तलवार है, और दूसरा हम लोग शील्ड कह सकते हैं उसको, ढाल है. तो उस तरीके से दोनों शस्त्र हाथ में पकड़कर आपको लड़ना है. स्पेस एंड अंडरलाइन, अटेम्प्ट होल पेपर, इट इज अप टू यू, इट्स योर चॉइस. जैसा हो सके उस तरीके से कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव तो करना ही करना. एंड अवॉइड कैंसलेशन, ये फोर्थ टूल है. एवरी सेक्शन वी विल डील विद ऑल दिस 4 पॉइंट्स एंड स्पेसिफिकली मेन 2 टूल्स इन द बिगिनिंग. इनको अगर हम लोगों ने समझ लिया, इसको अगर हम लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, देन वी कैन गो अहेड इजीली. तो हम लोग बाकी सब बातें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं. So now when I say these 4 points we have to deal with each and every section, so let's go ahead accordingly. We will see section wise. I am starting with Sugama Sanskritam.
Now in Sugama Sanskritam, in right hand side, you can see all the questions are written with options. So in this way, it is most important thing, because गलती से अगर किधर कुछ एक छोटा मोटा मिस्टेक हो गया तो to avoid it we will get the idea कि हाँ भाई उसको अवॉइड करने के लिए हमने ऑप्शन लिखा है तो आपको मार्क्स मिलते हैं. संख्या समय लिखते वक्त भी you can make such a table for समय लेखनम which is given in the question paper. It will look very good. कभी कभी हम लोग कहीं में ऐसा लिखते हैं उसको मार्क्स भी मिलते हैं, बट टू इम्प्रूव इन प्रेजेंटेशन आई एम गिविंग यू सजेशन. बराबर बहुत लोग हाफ पेज में पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं और पूरा हाफ पेज खाली रखते हैं. इट हैज नो मीनिंग. when they have given entire page, next new question you have to write it on the new page, then why to waste that half page? So it is better if you give line 2 to 3 lines after each and every question. It will look good. या सब क्वेश्चन लिखे हैं उसके बीच में एक एक लाइन छोड़ दोगे तो फिर भी अच्छा लगेगा. आपका पूरा टेबल जो है वो पूरा क्वेश्चन जो है सुगम संस्कृतम का वो इजी हो सकता है. आप उसको सॉल्व कर सकते हो. सो इन दिस वे सुगम संस्कृतम कैन बी सॉल्व इजीली, जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है. उसके अलावा सुगम संस्कृतम के आंसर्स लिखते वक्त क्या तकलीफ होती है? विद्युत कोश ये वर्ड है. मेनी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट ज्वाइनिंग त एंड क. दे आर फाइंडिंग के नहीं चलेगा ना त और क ज्वाइंट है यही मालूम नहीं रहता है. यू कैन राइट इट इन द टू डिफरेंट वे. विद्युत कोश है विच इज रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड, वो ज्वाइन करके लिखा है और आंसर पेपर में आप देख सकते हो तो हलंत कोश लिखा हुआ है. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉलो इट प्रॉपरली. दोनों तरीके से लिख सकते हो, बट वो त और क ज्वाइन करना ये इंपॉर्टेंट है. तंत्री ही में ओल्ड टेक्स्ट बुक है तो विसर्ग नहीं है. यू हैव टू पुट दैट विसर्ग. रोटी का परपटम दिखने में सेम है, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में तो और भी कंफ्यूजन हो जाता है. तो जिसके अंदर एक पीस निकला हुआ है अलग से वो रोटी का है और जो होल है वो परपटम है. शाकम सुपह दोनों बाउल में है, दोनों में से गर्म हवा निकलती है. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन ब्लैक एंड व्हाइट इमेज. बट जिसके अंदर स्पून डाला हुआ है वो सुपह है और जिसके अंदर सिर्फ वेजिटेबल्स दिखते हैं वो शाकम है. कटुहु तिक्तम हमें उल्टा लगता है दिया हुआ है, बट इट इज नॉट लाइक दैट. वो सही तरीके से दिया हुआ है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली कि कटुहु मतलब स्पाइसी एंड तिक्तम मतलब कड़वा. तो ये डिफरेंसेस बराबर से अंडरस्टैंड करना. चित्रपद कोश है हमें. संख्या में भी जो नंबर्स एंडिंग विद 2, 3 और 8 है, मतलब 22, 32, 42, 52, 62, या 3 वाले 33, 43, 53, 63, या 8 वाले 18, 28, 38, 48, 58, 88, वो वाले नंबर्स को ज़्यादा अच्छे से करना है. बिकॉज कभी अष्ट, कभी अष्टा होता है, कभी त्रय, कभी त्रयस, त्रयो हो जाता है, कभी द्वा, द्वे हो जाता है. सो टू अंडरस्टैंड इट दीज नंबर्स डू इट वेरी वेल. और जो 80 वाला टेबल है, एकाशीति ही, द्व्यशीति ही, त्रियशीति ही, उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना, बिकॉज उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं. समय तो इतना सिंपल क्वेश्चन है. मेलनम कुरुत है तो हम लोगों को तो पहले से आदत है मेलनम कुरुत करने की. मैच द पेयर, बराबर हम लोग क्लास में भी पेयर मैच करते हैं. सो वी हैव बेस्ट हैबिट ऑफ दिस. इसीलिए कोई भी बंदा इसमें कभी गलती करता नहीं है. सबके आंसर इसमें राइट ही आते हैं. So this was all about the Sugama Sanskritam, how to write, what to prepare, from where to prepare. Accordingly, you can prepare, and only 10 standard Chitrapat Kosh you have to prepare. Sankhya 1 to 100 all you have to prepare, and Samay is whatever given in the textbook. Accordingly, you have to prepare. That's it. Now the second section we can see Gadyam. In Gadyam, all the topics which we are doing very nicely, but main I would like to tell you in translation wala part which we are writing from Natya Stabakah or Dhenur, that chapter of Nadi Suktam. Now these topics are there by which you have to focus only on the translation wala part, where you can write the proper noun in Devanagari, Karna, Shakra accordingly. Don't write in Prathama, Shakraha, Karnaha. You can write Shakra, Karna, Pratipadikam. You have to write the main word over there by which you will get good things. If you write in English, will it be okay? Is it okay, but it will not look good? It will not create any impact. So it is better to write in Devanagari Lipi. Whenever you are writing answer in English, it should be in 3 paragraph. Chapter का name अच्छे से mention करना, because that is the most important thing. When you are writing additional introduction, and if you are making mistake in writing the title, it will lose your half mark. So very properly you have to write down the title. At the same time, it should be 3/4 of the page. Your answer should be 3/4 of the page nearby. ज़्यादा बड़ा भी मत लिखना, 1.5-2 पेज का. Corrector gets bored to correct that. और एकदम छोटा भी मत लिखना, एक ही पैराग्राफ मत लिखना. It requires 3 things, and nobody will mention that it is introduction, conclusion, or anything. You just have to make 3 paragraphs, 3/4 of the page. You can write down the answer. It will be useful for that.
जो मेन क्वेश्चंस आप लिखते हो उसमें अंडरलाइन सबसे बड़ा टूल है। जैसे मैंने बोला कि योग्य पर्यायम चिन्हित है, सत्यम असत्यम है, पूरा आपको सेंटेंस तो लिखना ही है बट आंसर को आप अंडरलाइन कर सकते हो, बाय विच करेक्टर विल फोकस ओनली ऑन दैट पार्ट रादर देन रीडिंग होल थिंग। त्वांत लेबंत तुमंत जब भी लिख रहे हो तभी संधि डिजोल्व करके लिखना है। एतत् श्रुत्वा है तो ओनली श्रुत्वा यू हैव टू राइट, यू डोंट हैव टू मेंशन दैट एतत् ओवर देयर। व्हाइल राइटिंग तुमंत अव्यय यू हैव टू राइट हलंत म। गंतुम है तो टॉप पैसेज में ऊपर डॉट रहता है, बट व्हेन यू आर राइटिंग इंडिविजुअल वर्ड इट शुड बी हलंतम। और जाल रेखा चित्रम पेन से ही ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। पद्यम में पोयम में अगर सबसे पहला किसका प्रैक्टिस करना है तो संधि का प्रैक्टिस करो, बिकॉज वंस यू नो द संधि डिसोल्यूशन फ्रॉम पोयम डेफिनेटली यू कैन राइट आंसर इन वन सेंटेंस। एट द सेम टाइम you can write down the anvay properly, and there is a individual question also of sandhi that you can attempt, and even web diagram for that also sandhi is important. So इस तरीके से आपको अगर संधि अच्छे से आ रही है you can attempt all the questions properly. So पोयम का संधि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। वर्सेस लिख रहे हो तो एक लाइन छोड़ के आप लिख सकते हो टू अंडरलाइन इफ यू विश। इफ यू डोंट वांट टू अंडरलाइन यू कैन राइट ऑल 4 लाइन्स कनेक्टेड वन बिलो द अदर तो चलेगा। बट अगर एक के नीचे कभी यहाँ पे दिखाया हुआ हैंड राइटिंग अच्छा है, नीट एंड क्लीन लिखा है, विदाउट लाइन छोड़ के भी उन्होंने अच्छे से लाइन किया हुआ है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। if you are able to do such things it's okay, otherwise what you can do, you can easily change your answers by giving one line। आप एक एक लाइन छोड़ के लिख सकते हो जिससे आपका हैंडराइटिंग जो है वो और भी अच्छा दिखेगा, वर्स भी बराबर से दिखेगा। एंड अन्वय में अंडरलाइन करना कंपलसरी है, जो ब्लैंक वर्ड है उसको वर्स में किया नहीं किया ऑप्शनल है, बिकॉज पूरा वर्स करेक्टर को चेक करना है, बट इन अन्वय इट इज रिक्वायर्ड। व्हेन यू आर राइटिंग ट्रांसलेशन देयर शुड बी प्रॉपर, आपको क्या करना है वहां पे इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन लिखना है। मेनी ऑफ देम आर थिंकिंग अगर 2 लाइन लिखेंगे तो काम हो जाएगा क्या, उससे पूरे 2 मार्क मिलेंगे क्या ट्रांसलेशन में, तो डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स ओवर देयर। इवन दो यू आर राइटिंग 2 लाइन्स दे विल नॉट से अरे 2 लाइन लिखा है 2 मार्क कैसे देने के, बड़ा लिखना चाहिए, इसलिए आपने इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन लिखा है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज बोर्ड हैज गिवन इंस्ट्रक्शन कि ओनली ट्रांसलेशन इज एक्सपेक्टेड, और वो भी सरल अर्थ बोला है। स्टिल वी विल राइट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन टू गेट फुल मार्क्स। बराबर आप आपकी भाषा में खुद की भाषा में बराबर से आंसर लिख सकते हो, वो मोर देन इनफ है ऐसा उनका कहना है। सो इन दिस वे यू कैन डील विद द पोयम सेक्शन। पोयम सेक्शन में ये डील करने के बाद नेक्स्ट इज लेखन कौशल्यम, वेयर यू कैन अटेम्प्ट उपपद विभक्ति एंड निबंध एज इट इज फिक्स्ड कि हम लोगों को ये अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो लेखन कौशल्यम में इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू हैव टू अंडरलाइन द उपपद गवर्निंग वर्ड, जो वर्ड चेंज हुआ है क्वेश्चन के वजह से, सह के वजह से तृतीया हुई है। सो रामेण यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभितः के वजह से शालाम द्वितीया में हुई है तो उसको अंडरलाइन करना है। और ऐसे लिखते वक्त कोटेशन इज मस्ट, आपको भले एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़े, एक एक्स्ट्रा वर्स लिखना पड़े, इट इज ओके। यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो इट इज गिवन, जो मॉडल ऐसे दिया है उसमें कोटेशन लिखा हुआ है, और जो साइड में स्टेप्स लिखे उसमें कोटेशन के लिए 1 मार्क दिया हुआ है। सो इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स यू हैव टू राइट दैट। संस्कृत अनुवाद और चित्रवर्णन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, आई विल सजेस्ट करो। संस्कृत अनुवाद बहुत इजी है बिकॉज वहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी और मराठी में सेंटेंस दिया हुआ रहेगा। जस्ट यू हैव टू पिक अप सेंटेंसेस फ्रॉम दैट हिंदी एंड मराठी वर्ड सेंटेंस, सेम वर्ड्स आर देयर इन संस्कृत ऑल्सो, एंड प्रॉपर विभक्ति यूज करनी है, प्रॉपर लकार यूज करना है, पुरुष वचन यूज करना है। एंड चित्रवर्णनम इज ऑल्सो फिक्स्ड, total 9 chitra varnams are there on page number 108, you can practice those chitras, only 5 sentences you have to write, there is no need to add any quotation or anything extra, so it is also a good option, so you can think about it, it is not like that ki ye easy hai, and when you have time definitely you can do all these things। so lekhan kaushalyam sanskrit ka hi hai jisme you can score full marks, other पार्ट राइटिंग स्किल में आप कभी फुल स्कोर नहीं कर सकते हो। और दिस इज द मेन पार्ट ऑफ भाषा अभ्यास। जब भी ग्रामर का पढ़ाई करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है, कौन से टेबल प्रैक्टिस करें, व्हाट टू डू फॉर वाच्य परिवर्तन, समास कैसे प्रैक्टिस करें, एट द सेम टाइम ग्रामर पढ़ना है तो शुरुआत किधर से करें। सो वी हैव सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद द टाइप ऑफ ग्रामर पढ़ने के लिए। भाषा अभ्यास जब भी करते हैं तभी हम लोग को ये सभी तकलीफें आती है, तो वो सब तकलीफों के बारे में तो मैं आंसर आपको दूंगा ही, बट उसके पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि जब भी आप भाषा अभ्यास का पढ़ाई कर रहे हो, व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग ग्रामर, एक चीज का फॉलो करना कि जो ब्लैंक वर्ड है उसको अंडरलाइन करना। मेनी ऑफ देम आर राइटिंग whole table correctly but they are not underlining, they are not getting mark in sankhya visheshanani also, they are writing answer but they are not underlining, in samas topic also they are writing right answer but they are not underlining।
Believe me, if you will not underline any word, you will not get any mark over there. सो मार्क मिलने के लिए आपको जरूरी है अंडरलाइन करना। ये पहला चीज समझ के रखो। पढ़ाई कैसे करने का वो तो मैं बताऊंगा ही, बट पढ़ाई करने के बाद लिखोगे नहीं बराबर से तो यू विल नॉट गेट मार्क। तो आपको इस तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है, विच यू शुड अंडरस्टैंड। अभी ये चीज समझ में आने के बाद भाषा अभ्यास की नेक्स्ट थिंग हमें क्या समझ में लानी है, दैट वी विल सी। तो उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको टेबल्स प्रैक्टिस करने हैं ना, उल्टा ऑर्डर फॉलो करना। एग्जाम में आपको पहला नाम आता है, फिर सर्वनाम आता है, फिर लकार आता है और फिर धातु साधित आता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन गो रिवर्स। पहला धातु साधित विशेषण करो फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 78। उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो लकार का टेबल प्रैक्टिस करो। यू हैव ओनली 5 लकार्स, लट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार एंड लृट लकार। उसमें भी लृट और लट का टेबल सेम है, आपको तो 4 ही लकार का प्रैक्टिस करना है। बट लकार तालिका करना धातु साधित तालिका के बाद, और उसके बाद सर्वनाम की तालिका करना। तद, अस्मद, युष्मद एंड इदम, ये 4 टेबल कर दिए, आपका काम हो गया। अब बोलोगे एतद, किम, यद, बाकी सब भी टेबल्स है, उसका क्या? ऑल दीज आर टेबल्स लाइक तद। तो तद एक किया तो आपको यद, एतद, किम, सर्व, ये सभी टेबल्स आ जाएंगे। इसलिए मैंने सिर्फ तद पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग कहा, अस्मद, युष्मद एंड इदम। तो कम टेबल करके ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये तीनों टेबल होने के बाद लास्ट में गो थ्रू विद द टेबल्स ऑफ नाम। और नाम के टेबल में भी पहले 10th स्टैंडर्ड के करना टेबल्स, जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 20, 21 और 22 पे है। उसके बाद 8 के टेबल्स करना, बाद में 9th के टेबल्स करना। लकार में अस, क्रू में अस का टेबल कर सकते हो बिकॉज इट इज इजी। क्रू का भी आपको करना है बट वो लास्ट में आप रख सकते हो। इदम लास्ट में रख सकते हो। 8, 9 के टेबल्स आप लास्ट में रख सकते हो नाउन के करते वक्त। तो इस तरीके से इफ यू प्रिपेयर, आपको टेबल कभी डिफिकल्ट लगेंगे ही नहीं। और जब भी बाकी ग्रामर पढ़ रहे हो तो उसमें आप संख्या विशेषण भी फोकस करो। सिनोनिम एंटोनिम्स की लिस्ट बनाओ, वो आपके समास को टक्कर दे सकता है या सूचनानुसारम कृति को भी टक्कर दे सकता है। तो उस तरीके से सिनोनिम एंटोनिम इज द बिगेस्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग टाइम पास के लिए रखते हैं कि नहीं आ जाएगा ऑन द स्पॉट वी विल राइट। but it is not like that. Just because of doing such keeping such attitude towards synonym antonyms, many of the time we are making mistake over there, and just because of that we have to focus on समास and सूचना अनुसारम कृति ही। so अगर उस पे किया तो दोनों में से एक क्वेश्चन को आप ऑप्शन में रख सकते हो। समास भी करना है तो फिक्स है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 33, 18, 33, 69, 91, ये 4 पेजेस है। ये 4 पेजेस पे समास का अलग क्वेश्चन है, उसके ऊपर ही फोकस करना। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। 18, 33, 69, 91 आप बाय हार्ट करके भी रख सकते हो ये पेजेस, उसमें से समास प्रैक्टिस कर सकते हो। और यदि आपको सूचनानुसारम कृति भी अटेम्प्ट करना है तो त्वम, भवान है, स्म है, उसको अटेम्प्ट करो। उसके साथ साथ यू विल फाइंड नेक्स्ट इज अणिजंत विच इज इजी टॉपिक। पूर्वकाल वाचक निष्कास इजी टॉपिक है। लकार, वचन और वाच्य परिवर्तनम यू कैन कीप फॉर ऑप्शन। आता है तो अच्छी बात है, लकार और वचन उसमें भी आप कर सकते हो, इजी है। वाच्य परिवर्तनम इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट यू कैन कीप फॉर ऑप्शन। देयर इज नो हार्म इन इट कि वो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए टेंशन लेके पढ़ाई करना चाहिए। या इफ यू आर कंफर्टेबल डेफिनेटली डू इट, सच अ नाइस टॉपिक इट इज, एंड डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर फॉर इट ऑल्सो। उसके साथ साथ अपठितम में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही ज्यादा दिमाग खाते हैं, दैट इज प्रातिपदिकम एंड कारक परिचय। मेनी ऑफ द टाइम वी डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट इज प्रातिपदिकम एंड व्हाट इज कारक परिचय। प्रातिपदिकम इज नथिंग बट द मेन वर्ड, रूट वर्ड वी कैन से। देवस्य में मेन वर्ड क्या है? देव है। सो नाउन बिकम वेरी इजी टू फाइंड आउट, बट इन सर्वनाम अस्मिन लगता है कि अरे अस्मिन है तो किसका? वो इदम सर्वनाम का पार्ट है, हम लोग को अस्मद जैसा दिखता है। सो देयर इज अ ट्रिकी पार्ट इन सर्वनाम where you have to focus how to deal with it, but definitely you can go ahead by doing all these things. So it will help you a lot to solve all these things. Yeah, in this way you can go ahead easily with the apatitam part. It becomes very easy. इस तरीके से आप पूरा पेपर लिख सकते हो, अच्छे से नीट एंड क्लीन रख सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना है स्पेस छोड़ते छोड़ते जाना हर क्वेश्चन में। लास्ट में सब एक्स्ट्रा मत लिखना, कोई चेक नहीं करेगा आपका एक्स्ट्रा जो कुछ भी लिखा हुआ है वो। सो समवेयर यू हैव टू मेक ऑल दिस अरेंजमेंट वाइल राइटिंग पेपर। थोड़ा थोड़ा जगह रखने का, अगर ऐसे लिखना है तो हाफ पेज छोड़ दो। धातु विशेषण तालिका बाकी सब कुछ लिखा है ग्रामर में, और भी कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना है तो वहाँ पे जगह छोड़ते जाना। ऑब्जेक्टिव में तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऑन द स्पॉट, वहाँ पे ही जब भी आपको टाइम है। एक्स्ट्रा चीज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको फोकस करके आगे बढ़ना है। सो